Hello children, how are you all? I hope you are fit and fine. Children, as you all know, this is your maths video class and we are going to learn and we are going to start a new chapter, measurement mass. It means measurement weight. So we are going to learn today, and as I am, you are already aware that we have already done this chapter and we are revising this chapter. Okay children? So we will take few key points of this chapter, measurement mass. Okay? And after that we will solve the exercise. So this is your chapter number 9 and you can find this chapter on page number 139. Okay? So take out your maths book, page number 139, measurement mass. Chapter 9, measurement mass, or you can say weight. Okay children? So, children, now children, I would like to tell you that we have learned in standard 2 the standard units of weight is kilogram and gram. But heavier things like rice and pulses, grain, any grain can be measured in kilograms. Or the small things just like very low weight, just like pencil, eraser, and a few things, suppose few tomatoes, few potatoes, or few vegetables, fruits can be measured in grams. So children, here you can see that we have already discussed this, that heavy things measured by kilogram and small thing or very light things can be measured in grams. So children, there are two type of you can say units of measurement of weight, and this is kilogram and gram. So first of all, kg is the short form. So first of all, you just know this kilogram and gram, children. Okay, so kilogram, the short form of the kilogram is kg and short form of gram is gram, g. So this is the short form of kilogram and gram. Now children, I would like to tell you that 1 kg equal to 1000 gram. 1 kg equal to 1000 gram. So always remember, because whole chapter or whole exercises are depend on that. ठीक है? अगर आपको ये याद रहेगा तो आप conversion में you don't find any problem. So children, always remember 1 kg equal to 1000 gram. On the basis of that we are going to do conversions. So here children, as you have already seen in our previous chapters, that denominations are there to measure weight. So there are few denominations you can find in your book, page number 139, and we have discussed also, and balance we have already discussed how many types of the balance is there in the market, or you can say with the vegetable sellers and every hawkers, that balance is always used. Some balance is very old, just like tarazu, है ना? This is called tarazu and this is very old measurement of weight, and this is called balance. And nowadays we are also might have seen that our vegetable sellers and hawkers are having this type of the balance. And nowadays the new type of the balances you can see, they are all available in the market, that is digital balance, तो जिस पे उस पे सामान रखते हैं और डिजिटली उसका वेट मेजर करके आ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स आपको मिलेंगे, बट
The unit of measurement always you can find at kilogram and gram. So children, we are going to start that conversion of units of mass. ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन फ्यू की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट. ओके, सो 1 kg equal to 1000 gram. Always remember this. Now conversion of units of mass. मास. ओके, सो कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में, दैट वी आर गोइंग टू लर्न चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्जन kilograms into grams. To convert grams into grams. ठीक है, टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स. पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कन्वर्ट करना ग्राम को किलोग्राम में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद हम सीखेंगे ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे. नाउ वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000. सो एज यू ऑल नो चिल्ड्रन, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है, ये आपका अगर आपको याद है तो ये बहुत आसान होता है कि हम किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें. सो ऑलवेज रिमेंबर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है, तो इसके लिए वी विल मल्टीप्लाई विद द गिवन kgs नंबर. kg का जो भी नंबर आया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 8 kg सपोज. ठीक है, अगर 8 kg है और हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो हम करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द गिवन kgs नंबर. kg नंबर क्या है, 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. देखा आपने, जो 8 kg का नंबर था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया. उससे होगा क्या कि जो आंसर आएगा, जो इसका प्रोडक्ट हमको मिलेगा, वो हमें 1000 में मिलेगा. और आपको जैसे पता ही है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ग्राम में आया यानी वो 1000 में ही नंबर वी विल सी. यानी 1 kg में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो यानी ऑफ कोर्स दैट 8 kg इक्वल टू 8000 ग्राम, यानी 8 kg इक्वल टू, ओके, इक्वल टू 8000 ग्राम. So here we are going to multiply with 8, we will get 8000 ग्राम. सिंपल, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1000 से और हमें अब ग्राम में अपना प्रोडक्ट मिल गया. सो 8 kg इक्वल टू 8000 ग्राम. नाउ चिल्ड्रन, I will give you one more example. Suppose 5 kg. 5 kg you are going to convert into grams. 5 kg है, 5 kg को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. तो हम करेंगे क्या, जैसे हमने 8 kg के साथ किया था, सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग. 5 kg इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम इक्वल टू 5000 gram. Okay, so here children you can find 5000 gram, है ना. अब हमें 5000 ग्राम मिल गया.
तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि कैसे हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है, कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। जब हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज रिमेंबर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी विल गेट द केजीज नंबर इनटू ग्राम्स नंबर. So we will get 5 kg equal to 5000 gram. Now I will give you one more example. Okay, one more example, that is 7 kg. Suppose 7 kg we are going to convert into grams. So what we will do? 7 multiplied by 1000 gram equal to 7000 gram. ओके, जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 7000 ग्राम. सो वी विल डू लाइक दिस. नाउ चिल्ड्रन, अब आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इफ द क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट 8 kg 56 ग्राम. सो यहाँ पर 8 kg और 56 ग्राम आपको मिल रहा है. अब आप हमसे ये पूछेंगे कि मैम ये तो 8 kg है, 8 kg तो हम कन्वर्ट कर लेंगे. What we will do with the 56 gram? So children, we are not going to convert. हम 56 ग्राम को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 56 ग्राम है. तो हम उसको 8 kg यानी 8000 प्लस 56 ग्राम. So we will get the answer 8056 ग्राम. ठीक है, तो ऐसे अगर मान लीजिए कि केजी के साथ साथ आपको ग्राम भी अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केजी वाले नंबर को कन्वर्ट कर देना है और जो ग्राम बच रहे हैं उसको आपको उसमें ऐड कर देना है. आफ्टर एडिंग यू विल गेट द प्रोडक्ट. सो चिल्ड्रन, लेट्स डू few more examples of this type of conversion. So we have already seen that kgs will be converted into grams by the multiplication 1000. ठीक है, अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें ग्राम्स भी रहेंगे. तो हम पहला आपको फर्स्ट वी विल गोइंग टू डू 4 kg children and 350 gram. 350 ग्राम. अब आप यहाँ पे देखिए कि 4 kg दिया हुआ है और आपको 350 ग्राम भी कन्वर्ट करना है. तो एक चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि 350 ग्राम इज़ ऑलरेडी ग्राम. सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर and we will add this number with the product of this multiplication. इस multiplication से जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें हम 350 ग्राम को ऐड कर देंगे, उसके बाद हमें उसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए हम लोग इसको करते हैं. नाउ हियर 4 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 350 ग्राम. अब आपको ये चीज़ें देखनी हैं कि हमने किया क्या है. इसको पहले आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है कि व्हाट द टीचर हैज़ डन. कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखिए कि कैसे हो रहा है. अभी देखिए 4 kg 350 grams here. So 4 kg multiply by 1000 gram plus 350 gram. Why 350 gram we are going to plus? Because it is already gram. So we are not going to convert. There is no need to conversion. ठीक है, इसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राम्स में ही दिया हुआ है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. अब हम करेंगे क्या? अब आप देखिए 4 multiply by 1000 equal to we will get 4000 gram plus 350 grams. So अब आप देखिए ये क्या किया हम लोगों ने,
जब हमें ये कन्वर्जन के बाद 4000 मिल गया तो उसके बाद हमने क्या किया, 4000 ग्राम प्लस 350 ग्राम, दोनों ही ग्राम है. अब we are going to add this together, so we will get 4350 grams. Simple. I hope it is clear to you. ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, जो हम कर रहे थे वही किया है. kg को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, but 350 gram is already gram, so there is no need to convert. We're just going to add with the product of this. So after adding 350 grams, we will get 4350 grams. Is that clear, children? I hope this is clear. Okay. So we will do one more example. एक एग्जाम्पल हम और कर लेंगे, ठीक है. 5 kg and 3 grams. ठीक है, 5 kg एंड 3 grams. अब 5 kg को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, एंड 3 ग्राम इज ऑलरेडी देयर, बिल्कुल दिया हुआ है ग्राम में, तो उसको तो हमें करना ही नहीं है. चलिए अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं. 5 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, ठीक है, प्लस 3 grams. ठीक है, यही हमें लेके चलना होगा पूरे अपने इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, वी विल गेट 5000 प्लस 3 ग्राम. अब हमें 5000 ग्राम में हमने 3 ग्राम जोड़ना है, ऐड करना है. तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 5003 ग्राम. दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये आपका आंसर आया. जब हमने 5000 ग्राम में 3 ग्राम को ऐड कर लिया, देन वी विल गेट 5003 grams. Is that clear, children? Okay. Now we will do one more example. So you can able to complete the exercise with the help of these examples. So that is why I am giving examples. Now 2 kg and 15 gram. 2 kg and 15 gram. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले you will see 2 kg multiply by 1000 gram, okay, plus 15 ग्राम. ठीक है, क्लियर है. क्या किया हम लोगों ने, 2 kg है तो 2 kg we will multiply with 1000 gram, and after that we will add 15 gram. Why we are going to add? Because it is already into grams, so there is no need to convert. Okay, here children we will see that 2 kg multiply by 1000 gram, we will get 2000 gram plus 15 gram plus 15 gram. अब जब हम 2000 में 15 को ऐड कर लेंगे, so we will get 2015 ग्राम. ठीक है, 2015 ग्राम. तो अभी मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं. अब हमने ये सीख लिया है कि कैसे हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो इज़ दैट क्लियर? मैंने दोनों टाइप से आपको समझा दिया है. तो आई थिंक देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूजन रिमेन. सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स. अब हमें ग्राम को किलोग्राम को जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले कि हम किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट दिस थिंग मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड व्हेनेवर द क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जाम, सो you can solve easily. ठीक है,
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाइए, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टुमारो वी विल स्टार्ट टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन टुमारो। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।